पौलुस की इस तलावत की तशरीह करूं, चाहूंगा जिस तौर से वो कहता है कि मैं इंजील सुनाने से शर्माता नहीं। पौलुस की जिंदगी का ताल्लुक इंजील मुकद्दस के साथ है। वो इंजील को अपनी जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा समझता है। वो इंजील के बगैर एक पल भी नहीं रहता। वो इंजील के बगैर एक पल भी जीना नहीं चाहता। तो हम इंजील के लिए कुछ इसको तारफी तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंजील के साथ पौलुस की वाबस्तगी क्यों है। मेरे अजीज, इंजील का मतलब आप सब जानते होंगे। बाइबल पढ़ने वाले बहन भाई, हजरात, ईमानदार, खादम इस बात से वाकिफ हैं कि इंजील का मतलब खुशखबरी है। आज जो मेरे और आपके हाथों में है, ये खुशखबरी है आपके पास और मेरे पास। हम जब इस खुशखबरी को दूसरों के पास ले जाते हैं, उनकी जिंदगियों में एक नई खुशी की लहर आ जाती है। मेरे अजीज, ये खुशखबरी या इंजील कोई फलसफा या थ्योरी या मजहब नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह खुदावंद है, जिससे लेना अपनाना खुदावंद हम सब के लिए जरूरी है। यानी इंजील यीशु मसीह है। वो कौन है, उसने कहा और उसने क्या किया और वो फिर क्या करेगा, ये सब इंजील का हिस्सा है। ये सारी बातें इंजील का हिस्सा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इंजील जो है ये खोए हुए गुनाहगारों या गुनाहगार शख्स के लिए गुनाहों की माफी और निजात की खुशखबरी है। अगर ये इंजील, ये खुशखबरी ना आती तो मेरे अजीज, इंसान की जिंदगी में निजात का लफ्ज कभी ना आता। कि वो कैसी तारीकी, गुनाहों, लानतों, खौफ, तन्हाई से छूटकर भरपूर शादमानी और उल्कुस के मामूर की बामकसद और बाइज्जत जिंदगी गुजारता है। ये इंजील के वसीला से ईमानदार की जिंदगी में ये तमाम तर बातें उस वक्त आती हैं जब वो इंजील से उसका वास्ता पड़ता है, जब इंजील उसके जिंदगी में आती है। क्योंकि खुदावंद यीशु का तजस्सुम, कि वो जो खुदा था, हमारी दुनिया में जिस्म लेकर इंसान बनकर आया और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। मेरे अजीज, ये सब कुछ हमें इंजील देती है और यही इंजील है, यही इसका तारुफ है जिसे हम पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं। और उसकी सलीब जो बेगुनाह और बेऐब था, दुनिया में तमाम गुनाहगारों की जगह वो मर गया। यीशु मसीह की कुर्बानी ने आज हमें खूबसूरत बना रखा है
اس نے ہمیں خوشی سے معمور کر دیا ہے، اور یہی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول تو ایک یہودی عالم تھا، یہ عام شخص نہیں تھا جس کی سٹوری ہم بڑی غور سے پڑھتے ہیں، اور انجیل مقدس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیرو رسول ہے، مگر یہ ایک وقت تھا کہ انجیل کے ماننے والوں کا ایک بڑا دشمن تھا۔ مگر جب زندہ مسیح اس پر ظاہر ہوا، اور جب ظاہر ہوا تو اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ گیا، وہ چینجنگ اس کی زندگی میں آ گئی۔ وہ ظلم، وہ تشدد، وہ جبر جو اس کی زندگی میں تھا، مسیح کی ملاقات ہونے سے ساری تبدیلی اس کے اندر آ گئی۔ اور اعمال 9 باب جب ہم دیکھتے ہیں، اور خداوند یسوع نے انجیل پھیلانے کے لیے مقصد کے لیے مخصوص اسے کر دیا۔ رومیو 1 باب 1 آیت میں دیکھیں، اور لکھا ہوا ہے، پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا۔ میرے عزیز، یہ مسیح سے ملاقات کا ایک انوکھا اور نیا پولس کی زندگی میں ایک انوکھا کام ہے کہ ملاقات کرنے سے ہونے سے وہ تبدیل ہو گیا، اور مسیح نے اسے جتا دیا کہ تو کیا کرے گا۔ اسے دنیا کی مختلف قوموں کے لیے اس نے چن لیا کہ وہ جا کر قوموں میں انجیل کی منادی کرے، یہ کام اس سے سونپ دیا گیا۔ میرے عزیز، مگر پولس رسول نے جب خدا کی مرضی کو جانا، پہلے تو وہ ایک بڑا ظالم تھا، مگر جب اس کے اندر ایک تبدیلی آ گئی تو پھر میرے عزیز وہ دکھ اٹھانے سے بھی باز نہ آیا۔ وہ دکھ اٹھاتا رہا، کئی بار وہ قید ہوا، 5 بار اس سے کوڑے لگائے گئے۔ یہ انجیل کی بات ہے، یہ پولس کی زندگی میں ایک نمایاں کارکردگی ہے جس نے انجیل کو پھیلانے کے لیے 195 کوڑے کھائے۔ نہ وہ قید سے ڈرا، نہ وہ دکھ اٹھانے سے ڈرا، بار بار قید جاتا رہا اور اس سے بار بار کوڑے لگتے رہے، مگر وہ بے شمار خطرات میں سے گزرتا ہوا انجیل کی منادی کرتا رہا۔ اس لیے وہ کہتا ہے، میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں، پس میں تم جو روما میں ہو خوشخبری یعنی انجیل سنانے کی حتی المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ میرے عزیز، یہ بات پولس کی زندگی میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طور سے وہ
پہلے زندگی بسر کرتا رہا، وہ چاہتا ہے اب وہ انجیل کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کر دے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کا قرضدار ہوں۔ میرے عزیز، یہ کوئی ایسا قرض نہیں ہے کہ اس نے ان طبقوں سے کوئی روپیہ پیسہ لیا ہو۔ وہ قرضدار کس بات کا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ کون سا قرضہ ہے جو پالوس سمجھتا ہے کہ میں ان کا قرضدار ہوں، میں یہ قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روپے پیسے کی بات نہیں۔ یونانیوں اور داناؤں سے مراد مہذب لوگ، تعلیم یافتہ معاشرہ کے اعلیٰ طبقہ کے لوگ ہیں یہ، جن کا وہ کہتا ہے کہ میں قرضدار ہوں۔ اور اس کے ساتھ وہ پسماندہ طبقے کی بھی بات کرتا ہے، جو غیر مہذب اور ان پڑھ قسم کے، گوار قسم کے لوگ ہیں، ان کی بھی بات کرتا ہے۔ وہ ان دونوں طبقوں کی بات کرتا ہے۔ وہ کرتا ہے میں ان دونوں کا قرضدار ہوں۔ اس لیے کیونکہ انجیل کو پیش کرنا پولس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں انجیل کو ان تک پہنچا کر میں اپنا قرض ادا کر دوں۔ وہ کسی دولت سے قرضدار نہیں ہے، کیونکہ پولس کی زندگی میں یہ ایک بڑا مشن ہے انجیل کو پھیلانے کا۔ جس طور سے اس سے پہلے کہ وہ شریعت کا ماننے والے ایک بڑا یہودی عالم تھا، اور وہ شریعت پر عمل کیسے کر رہا تھا؟ ایک جہاد کی صورت میں، اور قومیں جو جہاد سے تعلق رکھتی ہیں، شریعت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو قتل کرنا شاید وہ کار ثواب سمجھتے ہیں، کہ وہ نہیں چاہتے کہ دوسری قوم ان کے مد مقابل ہو، اور وہ مسیحیوں کا بڑا دشمن تھا۔ انہیں تباہ کرنے کا مشن اس کی زندگی میں تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کام کر کے میں خدا کی نظر میں ایک بڑا کام سر انجام دے رہا ہوں۔ اس لحاظ سے وہ روحانی لحاظ سے تو اندھا تھا، مگر مذہبی لحاظ سے وہ بڑا جنونی قسم کا شخص تھا۔ میرے عزیز، وہ یہ دوسروں کو قتل کرنا، مسیحوں کو قتل کرنا، وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے عزیز، یہ خدمت نہیں ہے۔ کسی کی جان لینا، کسی کو تباہ کر دینا، کسی کو مار دینا، یہ خدمت نہیں ہے۔ میرے عزیز، یہ خدا کے نزدیک یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ مذہب تو اس کے پاس تھا، مگر اس کا رشتہ زندہ خدا کے ساتھ نہیں تھا، اور اس لیے وہ مذہب کے لیے بے بیان اور بیابان میں ایک ایسے پیاسے ہرن کی طرح دوڑتا پھرتا تھا کہ اس وقت جب اس کا نام سول تھا۔ میرے عزیز، کلیسیا کو تباہ کرنے کی اس نے ٹھان رکھی تھی،
اور سرشار تھا وہ اس بات کے لیے جب دمشق کی راہ پر مسیح کے ساتھ اس کا ملاپ ہوا اور ایک بڑی روشنی جب اس پر طاری ہو گئی، ایک نور کی طرح روشنی اس پر ٹھہر گئی، اور لکھا ہے کہ وہ اونھے منہ گر پڑا اور اس نے ایک آواز سنی، جو آواز اس کے کانوں میں پڑی، اے سول اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور سول اس سے جواب میں پوچھتا ہے، اے خداوند تو کون ہے؟ مگر یسوع سے جواب دیتا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں یسوع ہوں جس کے لوگوں کو تو ستاتا ہے۔ میرے عزیز، جب ایسا ہوا تو پالوس کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آ گئی، نیا انقلاب آ گیا۔ وہ جابریت اس کی زندگی سے نکل گئی مسیح کے کلام کرنے سے، اور اس کی بات اس کی زندگی میں سرایت کر گئی، جبکہ وہ پہلا بڑا کٹھن شخص تھا۔ اور میرے عزیز، اب وہ مسیح میں ایک نئے انداز میں نمایاں ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ اسے ایک نئی حیات مل گئی، نئی زندگی مل گئی، اور سول سے وہ پالوس بن گیا۔ اور پالوس کا مطلب ہے، سول کا مطلب ہے جس کے لیے درخواست کی گئی ہو، یہ سول کا مطلب ہے۔ تو میرے عزیز، اور دوسرا نام اس نے اس وقت چینج کیا جب مسیح کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ چینج ہو گیا، اس وقت اس نے اپنا نام پولس رکھا۔ میرے عزیز، اس لمحہ کے بعد پولس کی روح میں آسمانی دولتوں کے خزانے اور مکاشفات اترنے لگے۔ وہ قرض دار تھا جو اسے حاصل ہوا، اور اس نے محسوس کیا کہ جیسے اسے انجیل کی قدرت سے نجات مل گئی ہے، ویسے ہی انجیل میں دوسرے گناہگاروں کی نجات بھی ہے۔ لہذا ہر شخص کے سامنے انجیل پیش کرنا اس کی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں اور دناؤں اور گناہگاروں، نادانوں کا قرض دار ہوں۔ اس نے محسوس کیا کہ انجیل ان سب لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اور میرے عزیز، پولس رسول نے کوئی بھی موقع ضائع نہیں کیا، خواہ وہ کسی قصبہ میں ہو، خواہ وہ پہاڑوں میں ہو، میدانوں میں ہو، ہر جگہ ہر وقت پولس انجیل سنانے کے درپے رہا۔ ہاں، اس کی انجیل، اس کی منادی کے درمیان اسے بہت سارے حادثات سے گزرنا پڑا، مگر وہ ان باتوں سے کبھی گھبرایا نہیں اور انجیل سنانے سے کبھی وہ شرمایا نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے، کیونکہ میں انجیل سنانے سے شرماتا نہیں۔ میرے عزیز، آج ایک انوکھا انداز ہے انجیل سنانے کا۔ بہت سارے ایسے اشخاص ہیں، اگر میں خادمین کی بات کر لوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انجیل کو کیسے پیش کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ٹچ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، اور وہ گھر بیٹھے رات کو راستے میں یا سفر کرتے ہوئے
उस मोबाइल पर उनकी नजरें जमी हुई हैं और क्या ढूंढ रहा है? पौलुस तो यूनानियों को और गैर यूनानियों को और दानाओं को और नादानों के लिए बात करता है, मगर आज हम कोई गोरा उसमें ढूंढ रहे हैं, कोई एनजीओ ढूंढ रहे हैं, ताकि हम इस वसीला से हम इंजील के लिए कुछ कर सकें। मगर मेरे अजीज, इसके पीछे कुछ और बात मालूम होती है कि मैं किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकूं, मैं किस तरह एक बड़ा अमीर शख्स बन सकूं। आज लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं, दुख नहीं उठा रहे, दुख उठाने की गरज से इंजील का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि एक अमीर ज्यादा बनने की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं, तलाश में हैं कि कैसे हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। बहुत सारे ख्वाब रखते हैं, मगर पौलुस तो ना तो पहाड़ों में जाने के लिए डरा, ना कस्बों में, ना मैदानों में, ना कैद से डरा, ना कोड़े खाने से डरा, बल्कि वो मुसलसल अंजील को उसने अपना मकसद समझा और लोगों तक पहुंचाने के लिए जदोजहद करता रहा और आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। मेरे अजीज, वो हर वक्त तैयार रहा। वह कहता है कि मैं सारी दुनिया का कर्जदार हूं इंजील की बना पर, ताकि मैं इंजील सारी दुनिया में फैला सकूं, और मैं सारी दुनिया का कर्जदार हूं। हम कैसे कर्जदार हैं? हमने अगर पैसे लिए होते हैं तो हम वावेला करते रहते हैं, हम अपीलें करते रहते हैं, हम कोई और जुर्रत करने का मुजाहरा नहीं करते, हम कलाम को नहीं थामते, हम इंजील की तरफ नहीं बढ़ते, हम खुदा के साथ हम कलाम नहीं होते। मेरे अजीज, जरूर है कि हम ऐसी बातों से निकलकर हम इंजील की तरफ बढ़ें और उसे पढ़ें और उसे दूसरों तक पहुंचाएं। खादिम होना कोई बड़ी बात, ये बड़ी बात भी है और बड़ी बात नहीं भी है कि खादिम का काम है लोगों तक इंजील को पहचाना और इंजील को सुनाना। मगर मेरे अजीज, आप सबके जुम्मे में भी ये काम है। अगर आप इंजील सुनते हैं या पढ़ते हैं तो फिर आपका काम है कि आप अपने पड़ोसी या राह चलते या सफर करते आप इंजील की बात करें और इंजील पेश करें, ताकि गैर कौम तेरे से कलाम सुने और मसीह की सच्चाइयों को सुने और कबूल करें। ये इंजील सुनाने की बात है, जुर्रत करने की बात है। पौलुस की तरह हमें बढ़ने की जरूरत है, मगर हम चक्कर लगाते हैं सिर्फ अपनी कौम में। मगर उसको तो ड्यूटी मिल गई कि जाओ, यीशु ने तो सबसे कहा, जाओ कौमों में इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। हम अपनों में घूमते फिरते हैं, हमारी मुनादी सिर्फ अपनों में है, गैर कौमों में जाने की जुर्रत नहीं करते। इंजील का सुनाना तो अलग बात है, गैर कौम के सवालों का हम जवाब नहीं रखते, ये जुर्रत नहीं करते कि हम इंजील की वसीला से उनके सवालों का उन तक जवाब ही पहुंचा दें। अगर आप जवाब ही उन तक पहुंचा देंगे तो मेरे अजीज, इसका मतलब यह है कि आपने इंजील दूसरी कौम तक पहुंचा दी है। हालेलुया। वो कहता है, मैं खुशखबरी सुनाने के लिए हत्तल मुकद्दर तैयार हूं। पौलुस रसूल दूसरी बात करता है कि वो सिर्फ तैयार है। किस तरह?
वो पूरी ताकत से, पूरे वसाइल से, जितने मौके उसके पास हैं और जितने राब्ते वो रखता है और जितनी मुआशी सकत है उसके पास, मुआशी सकत, गौर से सुनिए कि वो दौलत खर्च करने से भी बाज नहीं आता, दुख उठाने से और दौलत खर्च करने से भी बाज नहीं आता। जिस तरह उसके पास वसाइल है, वो उन्हीं वसाइल के वसीला से तालीम देने के लिए, इंजील फैलाने के लिए आगे बढ़ता है, तैयार रहता है। मेरे अजीजों, अपनी सारी ताकत के साथ इंजील सुनाने के लिए तैयार रहता है। हम कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे अजीज, जब खुदावंद उससे मिला तो उसने कहा, ऐ खुदावंद तू कौन है? नई तब्दीली का आगाज, पौलुस के अंदर नई तब्दीली नजर आने लगी। यीशु ने कहा, मगर उठ, शहर में जा, जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। इमाल 9 बाब 5 और 6 आयत में हम इसे देख सकते हैं। अब उसकी ड्यूटी यीशु लगा रहा है, हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। हम कितना काम कर रहे हैं, यह हमें अपना मुआवजा, अपनी पड़ताल, अपनी तलाफी करने की जरूरत है। अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं? हमें विजिट करना पड़े तो हम कह देते मैं इस घर में नहीं जाऊंगा। हाँ, विजिट के लिए जाना है, खुशखबरी पास है, खुशखबरी उसे मिल चुकी है, मगर विजिट के दौरान क्या कर रहा है? मैं कहता है कि मैंने इस घर में नहीं जाना। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तेरे पास खुशखबरी है तो किसके लिए है? इसी घर के लिए, इसी खानदान के लिए तेरे पास खुशखबरी है। तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे कहना होगा, तुझे सुनाना होगा, इसलिए कि इंजील तेरे हाथ में, जा लेकर उस खानदान में। हम पीछे को पैर खींचते हैं। अपने काम की पहचान कर, अपने काम की पहचान कर, मसीह की पहचान और उसका काम तेरे लिए लाजिम है। अगर तुझे यह काम सौंप दिया गया है, अगर यह खिदमत तुझे दी गई है, तो फिर तेरे लिए अज़हद जरूरी है। चाहे तेरी जान पर कितना भी भारी कुछ आ जाए, मगर इंजील सुनाने से कभी पीछे ना हट, कभी पीछे ना मुड़ के देख, फिर आगे बढ़ता जा। मेरे अजीज, पौलुस का मजाज क्या ही खूबसूरत है कि वो इंजील सुनाने से शर्माता नहीं है। वो इंजील सुनाने में आगे बढ़ता है। उसके दिल में इंजील की आग भड़कती है। आज मुझे और आपके दिल में झांकना होगा, अपने अपने दिल में झांकने की जरूरत है। मेरे दिल में इंजील की आग कितनी जल रही है, कितनी भड़क रही है, यह देखने की जरूरत है। मेरे अजीज, पौलुस रसूल ना सिर्फ तैयार था, जिसका मतलब महज किसी पैगाम या वाज की तैयारी नहीं है, बल्कि शख्सियत की तैयारी, मजाज की तैयारी, इंजील सुनाने के लिए दिल में भड़कती आग का नाम है। इन बातों को गौर से सुनना होगा। हमें किस तरह से
पौलुस की तरह बनना है, क्योंकि पौलुस के अंदर एक मुकद्दस जज्बा मौजूद था। उसने ठान रखा था कि मैं इंजील के लिए अपना आप कुर्बान कर दूंगा। वो दुख उठाने के लिए इसलिए तैयार रहता था। मेरे अंजील पौलुस रसूल ने इंजील के लिए अपनी जान दे दी थी। इंजील सुनाते सुनाते उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो कभी इस बात से उसने दरेग नहीं किया। अगर दूसरा तिमोथियुस 4 बाब 6 आयत जरा पाज साहब निकाल कर पढ़ दीजिए कि वो किस तरह तैयार था। 4 बाब 6 आयत। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आमीन। देखें किस तौर से उसने इंजील सुनाने का काम मुकम्मल किया। वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी दौड़ चुका। उसके हयात में कितने मराहल आए, कितनी मुश्किलें आई, कितने उसके सामने रुकावटें आई, मगर वो इंजील सुनाने से कभी बाज न आया। और आगे हम देखते हैं वो कहता है मैं शर्माता नहीं, क्योंकि मैं इंजील सुनाने से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। मैं इंजील से शर्माता नहीं। इसका तर्जुमा ये है कि मुझे इंजील पर फख्र है। हालेलुया। जो शर्माता नहीं वो इंजील पर फख्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम शर्माते हैं, हम तो इंजील कौमों में ले जाने से डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो मेरे अजीज हमारे अंदर फख्र भी नहीं है, हम कांपते रहते हैं। तो मेरे अजीज कलाम के आखिरी मराहिल में हम जाते हैं कि इंजील से क्यों शर्माए। इंजील यस्सु है और यस्सु खूबसूरत है और मुकद्दस है, नूर है, उसमें कोई ऐब नहीं, गुनाह नहीं, नक्स नहीं, दाग नहीं, अंधेरा नहीं, वो मोहब्बत है, इंसाफ है, फसल का चश्मा है। इसलिए हमें फख्र है मेरे अजीजों। ये क्वालिटी हम कहीं भी नहीं देखते। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं इंजील सुनाने से शर्माता नहीं, मुझे फख्र है इंजील सुनाने में, क्योंकि जो सुनता है वो तब्दील हो जाता है। हालेलुया। एक शख्स ने मुझे कहा आपकी तो इंजील बदल गई है। सफर कर रहे थे हम ट्रेन में, तारफ होने पर सवाल कर दिया गया आपकी इंजील नाखालिस है, आपकी इंजील तो बदल गई है। मैं सुनता रहा, उनकी 5 मिनट मैंने बातें सुनी। कोई इधर से बोल रहा था, कोई इधर से बोल रहा था, कोई इधर से बोल रहा है। झुरमट मेरे ऊपर था, मैं बड़े इत्मीनान से बैठा उनकी सुन रहा था, इसलिए कि खुदा मेरे अंदर था, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी और मैं फख्र से भरा हुआ था।
मैंने कहा भाई मेरी बात सुनिए, कभी आपने इंजील पढ़ी है? नहीं। फिर मैंने कहा आप कैसे कहते हैं कि इंजील बदल गई है? हमारे जी आलम कहते हैं। मैं है आलम तो कहते रहेंगे। आपका मुतालिया क्या है? आपका तारुफ कहाँ तक है इंजील का? मगर मैं मुख्तसर चंद लफ्जों में आपको बता देता हूं। आप इंजील पढ़ने से कतराते हैं और डरते हैं इसलिए कि जो पढ़ता है वो तब्दील हो जाता है। आप पढ़ें इसलिए आप पर खौफ है। कहा जाता ना 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 अंजील को हाथ ना लगाना। और कहने वालों को भी डर है, पढ़ने वालों को भी डर है। और भाई पढ़े, इंजील को पढ़े, आपका डर खत्म हो जाएगा और आप तब्दील हो जाएंगे। आप दरिंदे से इंसान बन जाएंगे। इंजील ऐसी चीज है। आए, हम दावत देते हैं कि आओ इंजील पढ़ो और अपने अंदर के शकूक को, शबात को निकालें और खुदा के लोग पौलुस की तरह, सौल की तरह पौलुस बन जाइए। मेरे अजीज, पौलुस के पास कोई असला नहीं था जो वो चलाता और डराता। उसके पास सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम था। जब वो करता और लोग रूहानी तौर पर तब्दील हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज जरूरत है मुझे और आपको, अगर हम इंजील के मानने वाले लोग हैं तो फिर हमारे अंदर शर्म नहीं बल्कि फख्र आने की जरूरत है। फख्र होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसी जात है जिस जात पर हम भरोसा करते हैं, जिस जात पर हम ईमान रखते हैं कि वो हमें इस नागहानी मौत से और इब्लीस के हाथों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो इब्लीस के हाथों में जकड़े हुए हैं, मारे मारे भागे फिरते हैं, मगर जो कोई उनमें वापस आता है, यीशु के पास आ जाता है, वो खलासी और मुखलसी पाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। आप भी यीशु की तरह, आप भी पौलुस की तरह दूसरों के कर्जदार रहिए और कौमों तक इंजील पहुंचाइए। और इंजील आप दावत ना भी दें, इंजील पहुंचा दीजिए और जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। खुदा आपके साथ। थैंक यू सो मच खूबसूरत कलाम के लिए। बड़ा खूबसूरत कलाम आज हम तक पहुंचा। तो मैं चाहता हूं खूबसूरत कलाम के लिए और खूबसूरत खादम के लिए जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करें। प्रेज गॉड। तो यकीनन आज हमने बड़ी खूबसूरत बातें सीखी हैं। तो एक बात का मैं भी इजाफा कर देता हूं। जो एक क्रिश्चियन लड़का था, तो वो सिखों के स्कूल में जाता था, तो अकेला ही था, तो वो मसीहियों से बड़ी नफरत करते थे। तो वो उसको अच्छा नहीं था समझता। तो अक्सर वो जाते तो उसने जो उसका टीचर था उसने बड़ी चिढ़ के साथ या पूछ लेना उससे कि जी सवाल पूछ लेना या उसको कभी क्लास से बाहर निकाल देना। वो बड़ी नफरत करते थे। तो एक दिन वो जो लड़का था जो मसीही था, वो उसने अपना हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो वो कहता है जी पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो। वो अपनी पॉकेट में से एक सेब निकालता है और एक बाइट करता है, उसको खाता है और फिर कहता है सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उसका सर कहता है पूछो। इसी तरह वो दोबारा क्या करता है, सेब को चक्की लगाता है, बाइट लेता है और फिर कहता है सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। करते करते सेब जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो कहता है सर मैं आपसे एक सवाल
میں نے آپ سے پوچھا مجھے اس کا جواب دو. اس نے کہا کہ سوال تو آپ نے پوچھا نہیں تو جواب میں کیسے دوں. تو اس نے کہا کہ سر یہ جو سیب تھا یہ میں نے کھایا تو اس کا ٹیسٹ کیسا تھا؟ وہ کہتا ہے، وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ شاید تو پاگل ہے، سیب تو نے کھایا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی تجھے ہی پتا ہوگا. کہتا ہے اسی طرح ہمارا مسیح ہے، ہماری بائبل ہے، جب تک اس کو کوئی چکھتا نہیں ہے وہ نہیں جان پاتا کہ وہ کس طرح کا ہے. تو یہ ہے خدا کا کلام کہ جس نے مسیح کو چکھا ہی نہیں وہ کس طرح سے اس کو جان سکتا ہے. تو اسی لیے اس کو چکھنا بہت ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ مسیحی بھی اسی طرح سے ہے. تو آج کا کلام کچھ اس طرح سے تھا کہ جو کلام کے بھید کو جان ہی نہیں پایا تو کس طرح سے مسیحت کو